Good morning, children. I am Dr. Sabita Prasad, your physics teacher, and today I am teaching about the refractive index and natural phenomena causes due to refraction. I explained that your day-to-day life, you will observe about the refraction, and already you observe but not explained in your ideas due to not knowing about the refraction. So today you clear and you observe in day-to-day life what type of phenomena caused due to refraction. Already I taught there are two laws of refraction. First is incident ray, refracted ray, normal at the point of incidence, and all lie at the same plane. Second is the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is the constant quantity. And this constant quantity is defined as refractive index of the second medium with respect to first medium. Mu equal to sin I by sin R. It is known as Snell's law. It is also explained, second law of motion, laws of refraction is also defined as ratio of velocity of light in vacuum or air to velocity of light in particular medium, that is the refractive index of particular medium with respect to air or vacuum. This also second law, but Snell's law is mu equal to sin I by sin R. So it must be remember that second law, that is mu equal to sin I by sin R, is defined as Snell's law, while mu equal to C by AB is only only laws of refraction, and that is second law. Okay, but both has comes by calculation, both comes or interchange, but Snell's law is mu equal to sin I by sin R. Now children, I already taught refractive index of water with respect to air, A mu W, it is represented as N या mu, sin I by sin R, and C V by W, यानी कि velocity of light in water, that is velocity of light in air, और इसका वैल्यू आता है 4/3. Refractive index of glass with respect to air, that is sin I by sin R, C by V, where V is the velocity of light in glass and C is the velocity of light in air. So 3/2. Refractive index of glass with respect to water अगर निकालना होगा तो W glass with respect to water, then A mu Z divided by A mu W, and sin I by sin R, sin R1 by sin I हो जाएगा, और VW by V, that is equal to 3/4 into 3/2, that is 9/8. और ये आ गया, और अगर उल्टा निकालना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, देन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा आपका ए म्यू डब्ल्यू बाई ए म्यू जी, और तब हमारा 8/9 आएगा. ये तो हो गया. ऐसे भी तुम जानते हो कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, सो 9/8, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है तो 9/8 और 8/9. सो आप कैलकुलेशन समझ में आया इसका, एंड अगर हमको निकालना होगा. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन कर देते हैं. व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम, इट बेंड्स द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द मीडियम डिफाइंड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. Generally it is represented by mu or n. It has no unit because it is ratio. ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन, यानी कि जब बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द मीडियम इज डिफाइंड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, तो और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से या एन से. एनसीईआरटी बुक में आपको एन से ही रिप्रेजेंट किया हुआ है, म्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हम लोग जैसे अभी पिछले पेज में आपने दिखाया था कि ए म्यू जी और जी म्यू ए लिखाते हैं, और फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड में तो 2-1 और 1-2 करके n12 और 2-1 करके भी आपका लिखा जाता है. तो आप वैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो. रिप्रेजेंटेशन ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है.
अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है? कहता है कि जब हम कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम निकालते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन लाइट रे passes from the vacuum to another optical medium, it bends. The ratio of the velocity of light in vacuum to the velocity of light in particular medium is defined as absolute refractive index of that particular medium. And absolute of refractive index equal to velocity of light in air divided by velocity of light in particular medium. Absolute refractive index को हम लोग डिफाइन कर तो दिए, अब हम लोग को पता होना चाहिए कि क्या है अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग बहुत सारी चीजें जान लें, क्योंकि मैं ये पॉइंट और 1 मार्क्स क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और आपके एमसीक्यू क्वेश्चन सब बढ़ रहे हैं, तो नेचुरली आपको इसको अच्छे से इस पे आपका कमांड होना चाहिए, टू द पॉइंट कमांड होना चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर। ये हम तुम लोग को पिछले क्लास में भी समझा चुके हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर, यानी कि कलर के अनुसार ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ द लाइट, यानी कि जिस कलर का लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जिसका कम होगा वेवलेंथ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। यानी कि और समझो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ अगर कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, इसलिए वो बेंड करेगा ज्यादा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑफ द वेवलेंथ। So light refractive index of violet color is maximum and red color is minimum. ये तो समझ में आया, रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम होता है, और वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव वेवलेंथ कम होता है इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। यानी वायलेट कलर ज्यादा मुड़ेगा और रेड कलर कम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। कहता है टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका डिक्रीज करेगा। क्यों? ये हम तुम लोग को वेवलेंथ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो तुम लोग को हम ये बता दें, इंक्रीज टेम्परेचर करेंगे तो क्या होता है, ऐसे भी तुम समझो रेयरर मीडियम हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और डेंसिटी घट जाता है तो बेंडिंग एबिलिटी उसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एक तो ये बात है। दूसरा क्या है कि तुम लोगों को बताए थे कि जितना बड़ा सोर्स होगा, जितना उसका हीट होगा, टेम्परेचर होगा, उसमें क्या होता है उतना कम वेवलेंथ का लाइट होता है। तो आपका जब वेवलेंथ कम है और लाइट रे जो इमिट कर रहा है, जो कि जिसका हाई टेम्परेचर है वो, और सोर्स बड़ा है और हाई टेम्परेचर पर है, और जब वो कम टेम्परेचर पे रहेगा तो उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो आपका टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे आएगा तो जैसे ही टकराएगा तो वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया तो इंक्रीज कर जाएगा वेवलेंथ। और तुम लोग जानते हो दैट इज द रीजन फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि जो लाइट रेज सन से आते हैं उसके वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ के होते हैं। जब हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं और हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इन कंपैरिजन ऑफ एयर बहुत कम होता है, और जब ये अंदर आते हैं हमारे अर्थ सरफेस से टकराते हैं और रिटर्न होते हैं तो इसके वेवलेंथ ऑलरेडी इंक्रीज कर चुके होते हैं। तो जो शॉर्ट वेवलेंथ करके ओजोन लेयर और ये सब एटमॉस्फेरिक लेयर से गुजर के चले आए थे, वही हमारे मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ट्रैप हो जाते हैं, चूंकि वेवलेंथ इसके इंक्रीज कर चुके हैं और वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करते हैं। तो ये तुम लोग को पता है तुम लोगों को। तो टेम्परेचर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करता है, यानी बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द मीडियम, दो रीजन है, एक तो रेयरर हो जाता है गर्म होने से एटमॉस्फेयर और उसके कारण भी, और दूसरा क्या है तुम लोगों को बता चुके हैं कि सोर्स जहां से लाइट रे आ रहा है उसका टेम्परेचर अगर कम जाएगा तो उसका वेवलेंथ घट जाएगा। टकराने के बाद वो कम टेम्परेचर वाले से वापस आ रहा है तो उसका वेवलेंथ इंक्रीज कर जाएगा, और जब वेवलेंथ इंक्रीज कर जाएगा तो नेचुरली उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर जाएगा। तो ये है आपका अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। When light ray enters from one medium to another medium, its frequency and phase do not change.
फ्रीक्वेंसी तो तुम लोग जानते हो, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, और नंबर ऑफ वाइब्रेशन और नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। तो अब कंप्लीट ऑसिलेशन, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन और कंप्लीट वाइब्रेशन, तो वन कंप्लीट ऑसिलेशन और वन कंप्लीट वाइब्रेशन में वन वेव क्रिएट होता है, तुम लोग जानते हो। और वन वेव तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड जो पास करेंगे उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट इन एनी मीडियम। एंड फेज, फेज यानी कि अब वेव्स जो फॉर्म कर रहे हैं तो उनके फेज भी नहीं चेंज करते हैं। जैसे कि ये पार्टिकल अगर ये इस आपका क्रेस्ट एंड ट्रफ वाले पोजीशन में है तो क्रेस्ट वाले का क्रेस्ट वाले ही पोजीशन में रहेगा, और ट्रफ ट्रफ यानी कि क्रेस्ट ट्रफ बन जाएगा या बीच में आ जाएगा, ऐसा नहीं है, वो आपका मीडियम में वैसे ही रहेगा। तो यानी कि उसका फेज भी चेंज नहीं करता है। ये आप लोग सीनियर क्लास में पढ़ेंगे कि जैसे कि हर बार आपका फेज जो है वो वेव का हर पार्टिकल के वाइब्रेशन के में आपका π/2 और 2π और 3π/2 और 4π में वन कंप्लीट वाइब्रेशन जो कंप्लीट करते हैं इस तरह के फेज में होते हैं, और आपको ये जो है फेज किसी भी मीडियम में इसका चेंज नहीं करता है। तो आगे natural phenomena due to refraction, twinkling of star, oval shape of sun in the morning and evening, bending of linear object when it is partially dipped in the liquid, an object in denser medium when seen from the rarer medium appears to be smaller distance at smaller distance। ये आप डे टू लाइफ में देखते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी देखे हैं सुबह में, राइजिंग सन और उनको आप लोग देखते हैं मॉर्निंग और इवनिंग में, माने आप सनराइज और सनसेट के समय में तो उसका थोड़ा सा शेप ओवल हो जाता है। बेंडिंग ऑफ लीनियर ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज पार्टिकल डिप इन लिक्विड, यानी कि आपका कोई भी चीज अगर पानी में आधा डूबा हुआ है तो वो मुड़ा हुआ टाइप का दिखता है, ये सब आपका है। अब इसको हम थोड़ा सा ये देखो, यहाँ पे अगर लाइट रे है तो आपका क्या है कि लाइट रे यहाँ से आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट रे निकल रहा है और डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है, और नेचुरली अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है, तो ये हो गया आर, और ये एंगल भी आर हो जाएगा, और अल्टरनेट एंगल सॉरी ये एंगल भी आर हो जाएगा, और ये एंगल और ये अल्टरनेट एंगल आर हो गया, इसी तरह से आई हो गया। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई बाई साइन आर निकालते हो तो अब ये चूंकि बहुत कम का वेरिएशन होता है तो हम हाइपोटेन्यूज को कांस्टेंट रखते हैं, तो एओ बाई ए आई यानी कि रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ, इससे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका है। अब यहाँ पे हम देखो, फॉर्चुनेटली फॉर द फिश लाइट रिफ्रैक्ट ट्रेवल फ्रॉम फिश in the water to eye of our hunter or unhunter. The refractions occur in water air boundary. Due to this bending of the path of the light, a fish appears to be location where it is not. A visual distortion occur. माने हम लोगों को धोखा खा जाएंगे। तो जो क्या कह रहे हैं, फिशर जो होते हैं उनको अंदाज होता है कि मछली यहाँ है, तो वो और तब वो फिशिंग करते हैं। जो पहले लोग फिश को तीर से या भाला से मारते थे, वो अगर इस तरह से अगर ना समझते तो वो एक भी फिश को मार नहीं सकते थे। उसी तरह से बगुला जो है वो बहुत अच्छे पोजीशन जाता है, तुम लोग जानते हो ना, बको ध्यानम काग चेष्टा अल्पाहारी स्वान निद्रा। अब गृह त्यागी अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी कोरोना टाइम है, तो गृह त्यागी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये विद्यार्थी के 4 लक्षण आप लोग अभी फॉलो कीजिए, है ना। बको ध्यानम, तो ये बगुला जो है वो पोजीशन पता लगा लेता है और फट से वो क्या होता है चोंच मारता है और मछली पकड़ लेता है। ये आप लोगों ने देखा होगा डे टू डे लाइफ में, तो ये पोजीशन पता लगाते हैं। असल में क्या होता है कि लाइट रे, जैसे ये फिश है तो लाइट रे यहाँ से चला और अवे चला गया और हम लोग को स्ट्रेट यानी कि यहाँ पे दिख रहा है, यानी आंख यहाँ है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। और ये आप घर में प्रैक्टिकल आप कर सकते हो, घर में ऐसे भी ग्लास में पानी डालते हो तो ग्लास का पानी के से ऊपर से देखते हो तो ग्लास का पेंदी थोड़ा ऊंचा दिखता है, ये सब तो आप देखते ही हो। लेकिन स्विमिंग पूल में अगर कभी गया होगे तो स्विमिंग पूल ऊंचा दिखता है, इस तरह का। तो ये आप लोगों को जो दिख रहा है ये आप करके देख सकते हो। और तुम लोग को एग्जैक्ट एक बाल्टी में पानी ले लेना, पानी में एक छोटी सी कटोरी रख लेना, छोटी सी कटोरी, और एक सिक्का डालने की कोशिश करना, देखोगे तुमको लगेगा, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिस के बाद वैसा होता है कि वो आपका उसी कटोरे में, छोटी सी कटोरी, बड़ा कटोरा मत रखना, नहीं तो वो अंदाज से डालोगे और चला ही जाएगा। छोटी कटोरी में डाल के देखना, और उसमें आपका बाउल, छोटा बाउल लोगे जिसमें कि सिक्का आसानी से
डूब जाए लेकिन उसके लिए चारों ओर सराउंडिंग बहुत सारा जगह नहीं हो। तो ये दिख रहा है आपको कि ये अपरेंट डेप्थ दिख रहा है तुम्हारा, ये रियल डेप्थ है, मछली यहाँ है लेकिन हम लोगों को यहाँ दिख रही है तो थोड़ा सा ऊंचा हो गया। यानी कि अगर हम रेयरर मीडियम में खड़े हैं और ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो वो अपने हाइट एक्चुअल डेप्थ से ऊपर की यानी कि ऊंचाई पर दिखता है, यानी कि उसकी अपरेंट डेप्थ घट जाती है। रियल डेप्थ ज्यादा होता है, अपरेंट डेप्थ कम होता है। आपको और दिखा दे, यहाँ पे देख रहे हो ये बॉटम जो है वो उसको यहाँ पे दिख रहा है जबकि वो यहाँ है, तो रियल डेप्थ ज्यादा है, अपरेंट डेप्थ कम है। और देखो यहाँ पे आपका नाव से दिख रहा है तो यहाँ पे आपका जो है वो रियल डेप्थ यहाँ पे है लेकिन हम लोगों को यहाँ दिख रहा है, इमेज हम लोग को यहाँ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? लाइट रे ऐसा गया और अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाने के कारण वो इस तरह से बेंड किया, और बेंड किया तो हम लोगों को ये दिख रहा है कि यहाँ पर है, और हम लोग का रियल बॉटम नहीं दिख रहा है उसका। ये देख लो, ये पानी के अंदर से देख रहा है तो इसको ये लड़की ऊपर नजर आ रही है, यानी अपने हॉरिजन से ऊपर नजर आ रही है, और ये लड़का जो है ये पानी के अंदर है तो ये लड़का इसको पानी से ऊपर न, दोनों ऊपर नजर आ रहा है लेकिन यहाँ हाइट बढ़ जा रहा है, अपरेंट हाइट बढ़ जा रहा है और यहाँ पे अपरेंट हाइट घट जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको व्हेन rays OA and OB cross the water air boundary then went away from the normal and the refracted ray appear come to point I से आ रहा है, यहाँ से नहीं आ रहा है, इस तरह से अवे जाने के कारण ये इस तरह से, तो रियल डेप्थ H हुआ और अपरेंट डेप्थ H डैश हुआ। ये देख रहे हो स्विमिंग पूल, ये स्विमिंग पूल का बॉटम है और हम लोग जब देखते हैं तो अपरेंट पोजीशन पर स्विमिंग पूल का डेप्थ यहाँ दिखता है और कंफ्यूजन होता है, कितना बच्चा सोचता है कि अरे तो कम ही है, हम तो नहीं डूबेंगे और डूब जाता है। इस तरह से स्विमिंग पूल पे भी यहाँ पे देख रहे हो व्हेन पेंसिल इज व्यूड इन वाटर लाइट passes from the water to the air causing the path of the light bend when the light bends the pencil appears distorted or bent or broken। ये इस तरह का दिख रहा है। इसी तरह से बाउल में चम्मच आपका बेंड दिख रहा है, ये आपका ग्लास में आपका ये बेंड दिख रहा है। आप देखो अब क्या है कि स्टार का पोजीशन, तो स्टार क्या हो रहा है कि एक तो बहुत दूर है, छोटा है, सन बहुत बड़ा है, सामने है, सन से भी बड़े बड़े स्टार होते हैं, तुम लोग को पता है, लेकिन क्या होता है इतने दूर है कि ये हमको छोटे छोटे दिखते हैं। और इससे जो लाइट रे आते हैं वो क्या होता है कि बहुत लिमिटेड लाइट रे हमारे पास पहुंच पाते हैं, ये नहीं कि बहुत ज्यादा लाइट रे आता है, बहुत लिमिटेड लाइट रे पहुंचता है, और वो डिफरेंट मीडियम्स से आते हैं। डिफरेंट मीडियम से यानी कि उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है, टेम्परेचर अलग अलग होती है, और तब क्या होता है कि वो लाइट रे रिफ्रैक्ट होते 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 हमारे पास पहुंचते हैं, और फाइनली क्या होता है कि रेयरर से डेंसर यानी वैक्यूम से हमारे डेंसर, तुम जानते हो कि ऊपर के लेयर रेयरर हैं और हमारे जो अर्थ सरफेस पर के लेयर है वो डेंसर है, तो इस रेयरर से डेंसर की ओर आते आते ये क्या होता है अपनी एक्चुअल हाइट से हॉरिजन से या एक्चुअल पोजीशन से वो ऊंचाई पर दिखता है ये यहाँ, और हम लोग को ऊंचा दिख रहा है और इसका ऊंचाई एक्चुअल से ज्यादा दिखता है। तो ये हमारा हॉरिजन से ये ड्यू टू रिफ्रैक्शन होता है, और हम लोगों को स्टार का जो पोजीशन है वो एक्चुअल हाइट से ज्यादा हाइट पे दिखता है। तो ये हम तुम लोगों को बताए कि ये स्टार ड्यू टू रिफ्रैक्शन अपने हाइट। व्हाई ट्विंकल द स्टार? The scientific name for the twinkling of star is stellar scintillation or astronomical scintillation। twinkling of star को हम लोग stellar scintillation कहते हैं या astronomical scintillation कहते हैं। Star except for the sun appear as a tiny dots in the sky। As their light travels through the many layers of the earth atmosphere, the light of the star is bent or refracted many times and in random direction। देख रहे हो इस तरह से, and this random refraction result in the star twinkling out। It looks as though the star moves a bit and our eye interprets this as twinkling। यानी कि लाइट कभी हमारे आंख में पहुंचता है कभी नहीं पहुंचता है, और हमको लगता है कि स्टार जो है वो ट्विंकल कर रहा है। असल में स्टार ट्विंकल नहीं करता, एक्चुअली ये मूव नहीं करता है, देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में वो और ये नहीं करता है। अब यहाँ पे है कि स्टार का देखो पोजीशन आपका इस तरह से, आपका द लाइट या ये देखो, अब ये है जो सामने है और एक ये है जो आपका इसके हॉरिजन से नीचे है, तो नेचुरली इसमें जो आपका रिफ्रैक्शन जो होता है वो
बहुत कम हो पाता है और स्ट्रेट होता है, तो नेचुरली क्या होता है 90 डिग्री पे है, तो रिफ्रैक्शन बहुत कम होता है, रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। सो क्या होता है कि ये बहुत ट्विंकल नहीं करता, बहुत लेस ट्विंकल करता है। लेकिन जो हॉरिजन से आपका ये इस तरह से है, और वो डिफरेंट मीडियम से जब लाइट हमारे पास पहुंचता है, तो इसमें रिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, और नेचुरली क्या होता है ये ट्विंकल करता है। तो ये डिपेंड करता है कि कम ट्विंकल कौन सा स्टार करता है, क्यों, वो किस पोजीशन पे है ना, अर्थ के सरफेस से किस पोजीशन पे, और पोजीशन जैसे जैसे चेंज करता है, इसका ट्विंकलिंग भी घटता या बढ़ता रहता है। ठीक है, आगे इसमें भी दिस मेक्स स्टार्स अपीयर एज though they are twinkling. In reality, stars do not twinkle in real. It is merely an optical illusion. हम लोग को ऐसे ही महसूस होता है। Turbulence in the atmosphere causes some of the light from the stars to be get refracted and reached our eye. Stars are visible to us through several layers of the atmosphere which vary in density, है ना, लेयर्स का डेंसिटी वैरी करता है, और यही कारण है कि हम लोग को ट्विंकल करता है। अब एक और तुम लोग को एग्जांपल बताते हैं कि अगर कोई पेपर पे बहुत सारे कलर से लिखा हुआ है और उस पर ग्लास स्लैब रख देते हो, तो ग्लास स्लैब रख देते हो तो क्या होता है कि बिकॉज ऑफ एवरी लाइट ऑफ डिफरेंट कलर हैव डिफरेंट वेवलेंथ, सो लेटर विल नॉट अपीयर सेम, है ना, कोई ऊंचा पे दिखेगा, कोई नीचा पे दिखेगा। अकॉर्डिंग टू व्यूअर, वॉयलेट कलर लेटर विल बी सीन to be most raised up to the shifted as the wavelength of the violet color is least and then any other visible spectrum, so violet color will be most reflected, thus later written from the violet color or blue color will suffer maximum refraction and the image will deviate more than any other light ray of the any other color. सो कहते हैं कि कोई भी जो भी कलर हमारे पास लाइट रे का माने और लेटर जो है हर कलर का है, तो वॉयलेट कलर ज्यादा डेविएटेड होगा, ब्लू कलर उससे, और विब्जियोर के अनुसार जो आपका है इंडिगो है उससे नीचे होगा, और रेड कलर सबसे नीचे होगा क्योंकि इसकी सबसे कम बेंडिंग होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें डिफ्रैक्शन कम हुआ तो वो ऊपर कम आया, बेंडिंग कम हुआ उस लाइट रे का, तो रेड नीचे ही दिखेगा। लेकिन वही अगर प्रिज्म के केस में होगा तो डिस्पर्सन, तो लिस्ट डिविएशन होने के कारण क्या होता है कि रेड कलर सबसे ऊपर हो जाता है और वॉयलेट नीचे होता है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करोगे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ग्लास स्लैब से दिख रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है कि ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ किसका रिफ्रैक्शन ज्यादा हो रहा है और वो बेंडिंग ऑफ लाइट उसी कलर का ज्यादा होगा, तो वो सबसे ज्यादा ऊपर दिखेगा। तो नेचुरली वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो ऊपर दिखेगा, और प्रिज्म के केस में ज्यादा डेविएशन होगा इसलिए वो सबसे नीचे दिखेगा। तो ये कंफ्यूज मत करना ये दोनों चीज। और आज हम तुम लोगों को इतना बताएं, अगले दिन हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्रैक्शन बताएंगे, और आपका लेंस क्लियर करेंगे। ठीक है ना, तो क्लियर और हैव अ नाइस डे, गुड आफ्टरनून।